Hello friends, welcome back to my channel. Today's session we will learn about projectile motion. So let's see what is projectile motion. So first we will see the definition of projectile motion. Let's see what is definition of projectile motion. The projectile motion is the motion of an object thrown or projected into the air at certain angle with horizontal axis subject to only the acceleration of gravity. The object is called a projectile and its path is called its trajectory. That means यदि किसी ऑब्जेक्ट को एयर में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पर थ्रो किया जाए और उस पर केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं तथा उसके द्वारा जो पाथ बनाया जाता है उस पाथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन लेट्स सी सम diagrams about projectile motions. This is the plane. So suppose this is the earth and this is the ball which we have to project in air. If we project this ball in air, then it follows like this path like this, and then this ball is called projectile, and its path, this path is called its trajectory. In this trajectory or in this motion, we can see that the object is moving in two directions, x and y direction. That means this object has velocity in two dimensions, in two directions, in x direction and in y direction. मान लेते हैं x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है vx and in y direction its velocity is vy at this point. This projectile motion, the gravitational force is act and its direction is towards earth. That means at every point of its trajectory, the force acting on this ball is gravitational force and its direction is towards the earth. This is the, suppose this is the pole and this is its and this is the object which we have to project in horizontal direction, and suppose its initial velocity is u. Then if we project this object in initial velocity u, then it follows path like this, and its path is following path is this its following path is this, and this path is called its trajectory, and this object is called projectile. And in this motion also, object is moving in two direction, x and y direction. Here also let's its at point this its x velocity in x direction is vx and velocity in y direction is vy. In this case also, the only force is acting is gravitational force, and its direction is also towards the earth. And let's see some examples of projectile motions. There are various examples of projectile motions which we have which we will see here. This water flown from a tap. Tap से यदि water flow हो तो that will be the examples of projectile motion. Let's see in other examples. Jumping from a bus. If we jump from bus, then it will be the example of projectile motion. That means we follow the path of projectile. And next one is thrown basketball in the basket. यदि हम किसी बास्केट बॉल को बास्केट में थ्रो करें तो उसकी पाथ भी उसकी जो मोशन है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे. मोशन ऑफ जेवलिन. जेवलिन मतलब भाला. भाला फेंक में जो भाला की मोशन होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है. अ बैटेड बेसबॉल. यदि एक बेसबॉल को बैट से हिट किया जाए
तो बेसबॉल की जो मोशन होती है उसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। थ्रोन फुटबॉल, फुटबॉल को यदि हिट किया जाए तो उसकी जो मोशन होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। अ बुलेट शॉट फ्रॉम ए राइफल, राइफल से यदि एक बुलेट शूट किया जाए तो उस बुलेट की जो मोशन होगी वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। गोल्फ बॉल मोशन एंड लास्ट वन इज डिस्क थ्रो, यदि एक डिस्क को थ्रो किया जाए तो उसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो हम इससे पहले जो डायग्राम देखें उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी अर्थ के सरफेस के किसी पॉइंट से थ्रो किया जाए या अर्थ सरफेस में किसी टावर या किसी बिल्डिंग के हाइट से थ्रो किया जाए, दोनों कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और उसकी जो पाथ होती है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट इट्स ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ हम दोनों केस को स्टडी करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से थ्रो किया जाए या जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया जाए। तो लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट in horizontal direction. Let this is the plane and this is the height from where object is thrown in horizontal direction. ये पॉइंट है O और इस पॉइंट O पर हमें कोई ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट O पर उस पर से हमें ऑब्जेक्ट को इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं। तो थ्रो करने पर ऑब्जेक्ट जो है इस ब्लू कलर की पाथ को फॉलो करते हुए अर्थ सरफेस में यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v और इसकी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स इस ट्रेजेक्टरी पर, इस ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होंगे उसकी उसकी वही उसकी उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब इस वेलोसिटी को इस पॉइंट पर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। तो यहाँ पर x कंपोनेंट vx है एंड y कंपोनेंट इज सपोज vy। एंड ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस में कहाँ पर नीचे गिरता है, वह उस पोल के जो पॉइंट है, पोल के नीचे जो अर्थ सरफेसिटी का उस पॉइंट से x डिस्टेंस पे सपोज ये अर्थ सरफेस को टच करता है और इस पोल की हाइट सपोज क्या है, y है। तो यहाँ पर टोटल हम देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है y डायरेक्शन में टोटल y डिस्टेंस ट्रेवल करती है और x डायरेक्शन में टोटल x डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और इस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उसकी ग्रेविटी दैट मीन्स एक्सीलरेशन, वो उसकी वैल्यू है g। हर पॉइंट पे जो वैल्यू g होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स अर्थ होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दैट इज सपोज u x 0 और जो किसके इक्वल है, u के इक्वल है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि इनिशियल कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है केवल x डायरेक्शन मूव करती है, इसलिए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर u y 0 इज इक्वल टू 0। एंड आगे हम देखते हैं कि x डायरेक्शन में चूंकि किसी प्रकार की एडिशनल फोर्स बाह्य फोर्स और एक्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगी और ड्यू टू ग्रेविटी y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी वो है g और उसकी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स अर्थ होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करती है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करें। तो पहले हम देखते हैं फॉर द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन।
तो ऑब्जेक्ट चूंकि y डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट मीन्स वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इससे पहले हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ चुके हैं, उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी बताया इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। यदि इसको हम टू डायमेंशनल मोशन के लिए लिखें तो इसमें थोड़ा सा सिंबल चेंज हो जाता है, बाकी सेम रहता है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये टू डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन है ये, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए सपोज टी टाइम पे वाई डायरेक्शन में मूव किए गई डिस्टेंस है वाई टी, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई जीरो टी, और ये हाफ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए वाई टी स्क्वायर। हम यहाँ पर देखें हमको मालूम है कि इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है जीरो है, इसलिए यू आई जीरो यदि जीरो पुट करें तो यहाँ ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाता है ए वाई की जगह में हम जी पुट करेंगे, और ये वैल्यू हो जाता है 1/2 जी टी स्क्वायर। और ये वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस जो कि हम फिगर में देख चुके हैं वो क्या है, वाई है, इसलिए वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी प्रकार सिमिलरली बाय यूजिंग द इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो लेट्स सी फॉर द मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन यूज करें तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू यू एक्स जीरो टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर यू एक्स जीरो क्या है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि किसके बराबर हम पहले लिख चुके हैं, यू के इक्वल है। अब एक्स टी मतलब टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में टोटल ट्रेवल का डिस्टेंस सपोज एक्स है, ये क्या हो जाता है, यूटी हो जाएगा ये। और सेकेंड टर्म जीरो क्यों हो गया, क्योंकि सेकेंड टर्म में ए एक्स है, और ये ए एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म जीरो हो जाता है। इस प्रकार एक्स इज इक्वल क्या हो गया, यू टी। और यहाँ से हम क्या है, टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू हो जाता है, और इसको हम मान लें इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम यूज कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 2 से t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ g इंटू एक्स बाई यू होल स्क्वायर। अब इसमें इसको आगे हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 जी यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 1/2 कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो हियर वी कैन राइट अनदर कांस्टेंट इन प्लेस ऑफ दीज ऑल। तो लेट्स सी y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ हमने 1/2 जी बाई यू स्क्वायर के जगह में क्या रख दिए, दूसरा कांस्टेंट b रख दिए। और इस प्रकार हमारा जो इक्वेशन मिला है y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, यही क्या चीज है, विच एक पैराबोला का इक्वेशन है। वो क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है। इसलिए यहाँ पर b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर के इक्वल है, एक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी होता है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन है। इससे प्रूफ होती है कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है, या प्रोजेक्टाइल की पाथ पैराबोलिक होती है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर थ्रो किया जाए तब क्या होगा। तो मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में
ये एक्स डायरेक्शन को डिनोट करता है, और इस अर्थ सरफेस में ओ एक पॉइंट है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल पर एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u से हम थ्रो करते हैं। तो वो एंगल क्या है, थीटा है। थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस प्रकार इस ब्लू पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ पे, पॉइंट P पर वापस आ जाती है। ठीक है। अब जब ये पॉइंट P पर वापस लौटेगा और पॉइंट P पर अर्थ सरफेस को टच करता है, तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा ही होता है। जिस एंगल पर हम थ्रो किए रहते हैं उसी एंगल पर वो अर्थ सरफेस को टच करता है। और यहाँ पर हम एक वाई डायरेक्शन हम यहाँ पे पुट कर लें, ड्रा कर लेते हैं, तो ये वाई डायरेक्शन हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट जो है एक मैक्सिमम हाइट पर होती है, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 है, और उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस पाथ पे हम देख पा रहे हैं कि इस ट्रेजेक्टरी में हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन इस मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वो 0 हो जाती है, और एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यू एक्स है। अब हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है u, उसको दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी y को हम डिवाइड करें तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा हो जाएगा, और y कंपोनेंट हो जाती है u sin थीटा। अब हम ये देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये मैक्सिमम हाइट y डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया मैक्सिमम डिस्टेंस, अर्थात मैक्सिमम हाइट क्या है, सपोज h है। इसी प्रकार हम मान लेते हैं x डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया मैक्सिमम डिस्टेंस सपोज क्या है, r है, अर्थात o से p तक ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस क्या है, r है। तो आइए हम देखते हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से थ्रो किया जाए तो उसमें दो प्रकार की मोशन होती है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अलग अलग हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ एजम्पशंस लेते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। वो एजम्पशंस क्या है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसका इफेक्ट प्रोजेक्टाइल पर नेग्लेजिबल है। दूसरा एजम्पशन हम ले लेंगे, जी इज कांस्टेंट, जी की वैल्यू जो है समय के साथ या फिर स्थान के साथ कोई परिवर्तित नहीं होती है, ये हम एक एजम्पशन लेते हैं। और थर्ड एजम्पशन है कि अर्थ रोटेशन का इफेक्ट जो है नेग्लेजिबल है। ये एजम्पशन लेकर हम आगे का स्टडी करेंगे। तो पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट हम फिगर में डिवाइड कर लेते हैं, उसको सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u cos थीटा और y कंपोनेंट है u y0 इज इक्वल टू u sin थीटा। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को अलग अलग हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फॉर द मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे टू डायमेंशनल केस में। तो ये इक्वेशन इस प्रकार लिखाता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स टी की जगह में सपोज टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। और यू एक्स जीरो हम पहले भी निकाल लिए हैं, तो वो यू कॉस थीटा, और ये टी को हम यहाँ लिख दिए, ये हो जाता है यू टी कॉस थीटा। और चूंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो रहता है, इसलिए ये सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा। और इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो t की वैल्यू क्या होगा, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। आगे हम पहले वाले केस में हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दिए हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करेंगे। तो फॉर द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। ये हो जाता है वाई टी इज इक्वल टू यू वाई जीरो टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ फिर से वैल्यू पुट करें तो
यू आई जीरो की वैल्यू यू साइन थीटा और ये टी तो यू टी साइन थीटा हो गया, और ए वाई की जगह में हम माइनस जी पुट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड्स लगता है, इसलिए ग्रेविटी जो है वो माइनस जी पुट होगा यहाँ पे। और इस प्रकार, और मान लेते हैं कि y डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस y है, और इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। हमें मिलेगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस इक्वेशन में टेन थीटा इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है वो x डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है, उसके लिए उस केस में जो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, टू कांस्टेंट और cos थीटा कांस्टेंट। तो इस g अपन टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह में दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं। सिमिलरली टेन थीटा की जगह हम दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं टेन थीटा की जगह में हम a लिख दें और g अपन टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह में b लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू है टेन थीटा जो एक कांस्टेंट है, b की वैल्यू है g अपन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो कि एक अनदर कांस्टेंट है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को ऑब्जर्व करें, देखें, तो हमें क्या पता चलता है, इक्वेशन नंबर 5 इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दैट मीन्स ये इक्वेशन 5 जो है पैराबोला के इक्वेशन के समान है। इसलिए हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि hence we can say that path of projectile is parabolic। तो इस केस में भी, अर्थात ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से भी थ्रो किया जाए, तो इस केस में भी प्रोजेक्टाइल की पाथ जो है पैराबोलिक होती है। और यदि ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से किए किसी हाइट से, ऊंचाई से यदि थ्रो की जाए, तब भी उस केस में पाथ जो है प्रोजेक्टाइल होती, सॉरी पैराबोलिक होती